باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جموں کشمیر میڈیکل امپلائیز فیڈریشن کی طرف سے تمام پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، تمام بھائیوں کو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہم ملازمین کی بات سننے کے لیے یہاں پر آئے. اس کے لیے تمام جموں کشمیر کے تمام میڈیکل کے ملازمین آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. رہی بات آج کے پریس کانفرنس کی، آج کی پریس کانفرنس سے ہمیں مراد ہے کہ آج جموں کشمیر کے ملازمین یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں. جموں کشمیر کے میڈیکل کے ملازمین آج گورنر صاحب سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں، گورنر صاحب اگر آپ نے بولا کہ ہسپتالوں میں مجھے بھرتیاں کرنی ہے، ہسپتالوں کو مجھے چلانا ہے اچھی طریقے سے، مگر کیا آپ کے پیچھے آپ کے جو اہلکار ہے، آپ کے جو آفیسران ہیں، کیا وہ اس آرڈر کو امپلیمنٹ نہیں کرنے دیتے ہیں؟ جیسا کہ ہمارے ہسپتالوں میں کام کرنے والے اکیڈمک ارینجمنٹ ملازمین جو پچھلے 11 سالوں سے وہاں پر اپنی جان پیشانی کے ساتھ وہاں پر کام کرتے ہیں، آج ایک ظالمانہ آرڈر نکال کر ہمارے 2013 کا جو بیچ ہمارا ہے ان کو ٹرمینیٹ کیا گیا. جیسے آپ سب لوگ واقف ہیں، 15 اگست پر یہاں کی سرکار نے، یہاں کی ایڈمنسٹریشن نے، یہاں کی بیوروکریسی نے تمام ان ملازمین، تمام ان اپنے آدمیوں کو ایوارڈ دے دیا ان کے کام کرنے پر، مگر آج میڈیکل کے ملازمین جو فرنٹ لائن وارئرز ہیں ان کو آج ان کے ہاتھوں میں آج ٹرمینیشن آرڈر تھما دیا گیا. جیسے لوگ آپ جانتے ہیں، تمام پریس والے آپ جانتے ہیں، کتنے ملازمین ہمارے پازیٹو ہو گئے، کتنی ہماری سسٹر صاحبان پازیٹو ہو گئی، کتنے ہمارے میڈیکل اسسٹنٹ، پیرا میڈیکل ڈاکٹرز انکلوڈنگ کلرک صاحبان بھی ہمارے پازیٹو ہو گئے. آج سرکار کی طرف سے ہمیں یہ انعام ملا کہ آپ کو ٹرمینیٹ کیا جاتا ہے. میں آنریبل گورنر صاحب سے آپ کی وسادت سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، گورنر صاحب آپ ایک سیاسی لیڈر ہیں، آپ کو لوگوں کی سمپتیز کے بارے میں پتا ہے، آپ لوگوں کی سمپتیز کو دیکھیے. یہ کون سا قانون ہے، یہ کیا آپ یہ کون سی ایڈمنسٹریشن ہے، آپ لوگوں کو نکال رہے ہیں، آپ لوگوں کو لگانے کے بجائے ہسپتالوں سے نکال رہے ہیں. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کووڈ-19 کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا، ملازمین کی تعداد ہسپتالوں میں بہت کم تھی. اس آرڈر کا ہم والہانہ استقبال کرتے ہیں گورنر صاحب کے، انہوں نے بولا کہ ہم آپ کے ملازموں کو لگائیں گے، مگر بدقسمتی سے 25 تاریخ کو ہمارے ایڈمنسٹریٹر گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر ایک آرڈر نکالتے ہیں کہ 2013-14 کا جو بیچ ہے ان کو ٹرمینیٹ کیا جاتا ہے، ان کے 6 سال مکمل کیا جاتا ہے. آج کی جو پریس کانفرنس ہمارے ہیں یہ SRO 384-409 SRO 23 جو SRO جس کو 2009 میں لگایا، 2009 میں اس کو لگایا گیا تھا. 2009 سے یہ آج تک یہ ملازمین بیچارے یہ جموں میں بھی ہمارے کام کر رہے ہیں اور کشمیر میں بھی ہمارے کام کر رہے ہیں، جان پیشانی کے ساتھ کر رہے ہیں. یہ وہ ملازمین ہیں ڈگری یافتہ، ڈپلوما ہولڈر، ہائی کوالیفائڈ، اور یہ ملازمین ہائی میرٹ پر اور ایک پراپر کمیٹی کے تحت جس کی صدارت کمشنر سیکرٹری صاحب کر رہے تھے، انہوں نے ان ملازموں کو لگایا. آج سرکار کی عدم توجہ کی وجہ سے اور سرکار کے نیچے جو افسر بیٹھے ہوئے ہیں، گورنر صاحب کا وہ آرڈر امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا ہے، جس سے ہمارے ملازمین بیچارے سفر کر رہے ہیں. آپ کی وسادت سے میں منوج سنہا صاحب سے بھی یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، اگر ہمارے ملازمین جو ٹرمینیٹ ملازمین کیے گئے اگر ان کو واپس انگیج نہیں کیا گیا تو آنے والے وقت 5 ستمبر کو تمام میڈیکل کے ملازمین انکلوڈنگ ایکیڈمک ارینجمنٹ، ہسپتال ڈیولپمنٹ فنڈ ملازمین، تمام ملازمین کشمیر نرسنگ ہوم سے گورنر صاحب کے کوٹھی تک ایک مارچ کرے گی. جو بھی اس کا جو بھی اس کے نتیجے نکلیں گے وہ یہاں کی ایڈمنسٹریشن اور پرنسپل میڈیکل کالج کے ذمہ پر ہوگی. یہ 2013-14 کا بیچ ہے، 100 سے زیادہ ملازمین ہیں، کم سے یہ زیادہ اس میں نرسیں ہیں جو ہمارے بیچارے جنہوں نے کووڈ میں اتنا کام کیا ہے وداؤٹ جو کٹوں کے بغیر باقی چیزوں کے بغیر کام کرتی، ان کے بچے سفر ہو گئے، ان کی فیملی سفر ہو گئی. آج ان کو یہ ایوارڈ مل گیا ان نرسز کو جو SMHS میں، CD میں اور شرین باغ میں باقی جتنے بھی وادی کے ہسپتال ہیں وہ وہاں پر کام کرتے. آج 6 سال کے بعد
सरकार ने उनको 15 अगस्त के मौके पर ये अवार्ड दे दिया, आज 25 अगस्त को उनको अवार्ड थमा दिया हाथ में, आपको टर्मिनेट किया जाता है। जी मैं आपको बताता हूँ, इससे पहले भी जो हमारे पोस्ट 1500 पोस्ट यहाँ की जो मेडिकल कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज है, वो वहां पर यहाँ से रेफर कर दिए थे। इस बात पर हमने उनको ये बोला था कि आपने ये 1500 पोस्ट क्यों रेफर आपने किए, बोला कि सरकार की तरफ से मुझे ऑर्डर, आप मुझे बताइए वैकेंसी पोजीशन क्या है। मगर हमने बोला ये 1000 से 1200 मुलाजिम जम्मू और कश्मीर में है, ये इन पोस्टों पर काम आपने कैसे रेफर कर दिया। बोला कि नहीं जी, मैं सरकार की तरफ से मुझे एक ऑर्डर मिला था, इनको रेफर करो। तो उस बात पर हमने प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज से भी बात की, मगर वहां से भी हमें नाउम्मीदी के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। यहाँ पर कोविड इस वक्त चल रहा है, कोविड की वजह से एक आदमी मर गया, अगर कोविड किसी को हो गया तो एक आदमी मर गया। जब ये ऑर्डर निकलता है इसकी फैमिली मर जाती है, एक आदमी के पीछे 5 फैमिली मेंबर्स है इसके। जब ये ऑर्डर निकलता है इसकी अब इसकी लड़की की शादी हो गई, अब इस लड़के की शादी और ओवर एज भी हो गया। अब जब सरकार हमें ये इजाजत नहीं देगी, फिर अपने आप को हम कफन लगा के निकलेगी, जो भी नतीजा निकलेगा, जो भी हो जाएगा। हम गवर्नर साहब से, जिन्होंने हमें ये पूरी उम्मीद है, गवर्नर साहब से हमारी पूरी उम्मीद है, क्योंकि वो लोगों का सुनते हैं, हमने सुना है कि वो लोगों का सुनते हैं, वो गरीब आवाम का सुनते हैं, खुसूसन मेडिकल का वो सुनते हैं। अगर हम जाएंगे उनके पास, अगर यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने अलाउ नहीं किया, हम अपने आप को तमाम मुलाजिमों के साथ कफन बांध के जो भी हो जाएगा हम आगे जाएंगे इंशाल्लाह। जब इनको लगाया गया तो एक एडवर्टाइजमेंट नोटिस निकाली गई। जब एडवर्टाइजमेंट नोटिस निकाली गई, उसमें 4 आदमियों को कमेटी मेंबर्स बनाया गया। उसमें कमिश्नर सेक्रेटरी उस वक्त के थे भंडारी साहब, उस वक्त के हमारे प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज जम्मू के और कश्मीर के, और एक एक्सपर्ट और एचओडी, तमाम एक इसमें कमेटी बनाई गई। उस कमेटी इनको प्रॉपर तरीके से इनको सिलेक्शन किया गया, इनके डिप्लोमा को देकर, इनकी डिग्रीज को देकर, इनको इनका मेरिट देकर और इनकी एलिजिबिलिटी देकर, और इनको रेगुलराइज किया गया। आज सरकार बोलती है कि इनको हम निकालेंगे, इनकी जगह हम दूसरों को लगाएंगे, जबकि इनको 11 साल हो गए। अगर यह उस वक्त 30 साल की उम्र में नौकरियां लगी, आज इनका उम्र हो गया 40 साल, ये एवरेज हो गई। ये फॉल्ट तो सरकार का है, इनका नहीं है। सरकार को हम नहीं बोलते हैं सरकार को आप मत लगाए, सरकार लगाए, हमें कोई एतराज नहीं है। मुलाजिमों की जरूरत है, यहाँ हर एक डिपार्टमेंट, खुसूसन मेडिकल में मुलाजिमों की जरूरत है, क्योंकि कोविड है, बाकी मामला है, लगाए, हमें कोई एतराज। मगर हम सरकार को ये करने की इजाजत नहीं देंगे कि वो यहाँ के अंदर के मुलाजिमों को निकालकर बाहर के मुलाजिमों को लगाए। हमारा जो मसला है आपके माध्यम से ये आगे एडमिनिस्ट्रेशन तक जा रहा है। एक्चुअली मैं थोड़ा सा इसमें जो है ब्रीफिंग करना चाहता हूँ कि हमारा एसआरओ जो है किस बुनियाद पर लगाया गया है, क्या मसला है। 2009 में एक एसआरओ बनाया जाता है जो रूलिंग गवर्नमेंट उस टाइम थी। उसमें एक चीज़ कोट किया जाता है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू, 2 कॉलेज और डेंटल कॉलेज साथ में, जो ये 4 कॉलेज, इनके लिए एक एसआरओ फ्रेमवर्क किया गया, एसआरओ 384 फॉर द पीरियड ऑफ 4 ईयर। इसमें एक सिलेक्शन कमेटी बनाई गई, जो एक प्रॉपर प्रोसीजर है कि आप एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे और जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया को पास करके जिस बंदे को आप, जिस कैडर को आप ला रहे हो, प्रॉपर सिलेक्शन के साथ एक प्रॉपर रिक्रूटमेंट, और मुझे लगता है सबसे हाई पैनल सिलेक्शन कमेटी उसमें बैठाई गई, जो कि बोर्ड से भी ज़्यादा है, और उनको प्रॉपरली एडवर्टाइजमेंट देके सिलेक्शन की गई और उनको डिपार्टमेंट में डिप्यूट किया गया। उसके बाद जब 4 साल इनके गुजर जाते हैं, 4 साल के बाद गवर्नमेंट एक अमेंडमेंट करते हैं अंडर द एसआरओ 409 के अंदर, उसमें एक्सटेंड करते हैं 2 साल और टोटली एसआरओ बनाया जाता है 6 ईयर्स का। और 6 ईयर में एक प्रोसीजर बनाया गया है कि गवर्नमेंट इसमें लिखते हैं कि जब भी आपका पोस्ट फिल होता है थ्रू प्रॉपर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, इस बंदे को वहाँ से निकलना है। मगर उसमें एक चीज़ है कि जब आप किसी को रिक्रूट करते हो 1 साल के लिए, 1 साल में आपको एसआरओ बोल रहा है कि भाई 1 साल के अंदर लगाने के साथ साथ आप इस पोस्ट को एडवर्टाइज करेंगे थ्रू बोर्ड से। तो ये जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर या जम्मू से जितनी भी एडवर्टाइजमेंट होगी, 6 साल तक उन्होंने कंटिन्यू किया। अब 6 साल में जितने लोग आए, चाहे 1000 थे या 1500 लोग थे, उनका वो अपर एज लिमिट भी चला गया। 2010 में जिनको लगाया गया, जब वो 2016 में क्रॉस करते हैं, तो आप देखिए उसमें क्वालिटी क्राइटेरिया भी चेंज हो गया। अब उनको कंपेयर करिए आप, क्या वो 2010 का बंदा आज 2019 में कम्पीट कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि सारी चेंजेस उसमें आ गई। तो फिर गवर्नमेंट मजबूर हो गए, जो लोग इसमें डिप्यूट हुए थे, जिनकी सिलेक्शन हुई थी अराउंड 1000 पीपल, तो वो मजबूर हो गए कि 6 साल तक इन्होंने हमारा कुछ नहीं सोचा।
सिर्फ एक एक्सटेंशन दिया गया, जिस एक्सटेंशन को कंटिन्यू किया। और यहाँ से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर था या जम्मू था, उनका एक जरूरत थी स्टाफ की, एक जरूरत थी, तो उनको कंटिन्यू किया गया। उस कंटिन्यूस के बाद जो लोग इसमें काम कर रहे थे उनको मजबूरन ये चीज़ करना था कि उनको कोर्ट भी जाना पड़ा। जब कोर्ट से एक ऑर्डर पास होता है कि भाई इनको कंटिन्यू करो आप, कंटिन्यूस के बाद हमें ऑब्जेक्शन सबमिट करो आप, हम देखना चाहते हैं। अब यहाँ एक मसला और मैं क्लियर करना चाहता हूँ। सही बात है कि SRO 84 क्लियर कट था 6 ईयर से। अगर गवर्नमेंट इस पे स्टैंड थी, उनको चाहिए कि 6 साल के बाद उनको निकाल दीजिए, मगर वो जो कोर्ट से एक ऑर्डर बनता है उस ऑर्डर को वो इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट मीन्स कि गवर्नमेंट ये चीज एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो बंदा कोर्ट से ऑर्डर लेके आता है उसमें वो लिख रहा है, उसको क्लियर कट रिप्रेजेंटेशन है जिसमें उसको दिया गया है कि अंडर स्पेशल सर्विस प्रोविजन एक्ट 2010 के तहत आप इनका 1 साल और कर दीजिए और उसके बाद इनको रेगुलराइज कर दीजिए। और गवर्नमेंट ये चीज एक्सेप्ट कर रहा है और उनको कंटिन्यू, और विद द कंसल्ट ऑफ कमीशन सेक्रेटरी जो उस टाइम थे, और उसके बाद ये कंटिन्यू किया गया। अभी जो है अभी अराउंड 11 ईयर्स हो गए, मतलब ये समझिए आप 11 साल हो गए, 11 साल से कंटिन्यू लोग वहाँ काम कर रहे हैं। और 11 साल के बाद हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं। इन 11 सालों में जो जो रिप्रेजेंटेशन बने, जो भी प्रिंसिपल आए, जो भी कोर्ट ऑर्डर इंप्लीमेंट हो गए, उनकी पूरी डिटेल्स, और वक्तन फवक्तन जो भी प्रिंसिपल बैठे उन्होंने रिकमेंड किया, हाईली रिकमेंड किया गवर्नमेंट को कि ये बंदे हमारे काम कर रहे हैं, ये डिपार्टमेंट्स को चला रहे हैं, इनको हमें रेगुलर करके दे दीजिए। हमारी जो इनिशियल अपॉइंटमेंट थी उसमें एक एफिडेविट लिया गया है कि भाई आप किसी भी परमानेंट पोस्ट के लिए कोई भी क्लेम करनी, मगर उसमें एक प्रोविजन रखा गया है कि आपका जो पोस्ट है, जैसे जिस ईयर में आप हम रिक्रूट कर रहे हैं, इसी साल में आपका पोस्ट रेफर हो जाएगा SSG, मगर ये इस साल में भी रेफर नहीं हुआ। और यहाँ तक कि 11 साल हो गए, 11 साल में आप रेफर नहीं पोस्ट को कर रहे हो। आप मुझे बोलिए, वो जो इस पे काम कर रहा है उसको SSG से भी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं हुआ, वो कहाँ जाए? और वायलेट कौन रूल कर रहा है? अगर SRO 384 हमने वायलेट किया है तो आप बोले हमने किया है, हमने तो काम किया है, हमने अपना वक्त दिया है। तो उसके बावजूद जब 6 साल गुजरते हैं, 6 साल में आप देखिए जिसका अपर एज लिमिट था, बहुत सारी चीजें जो चेंज हो गई, तो उसके बावजूद हमें जाना पड़ा कोर्ट में। कोर्ट में मैंने ये बात पहले भी किया, अगर कोर्ट से ये वकेट करना था आपको तो चाहे 6 साल के बाद आपको ये बंद करना था, फिर आपने कंटिन्यू किया। मीन्स ये कि जो भी चीज वायलेट हुआ ये उनकी तरफ से हुआ, हमारी तरफ से नहीं हुआ। हमारी तरफ से काम हो रहा है, हमने कभी नहीं चाहा कि हमारा पेशेंट केयर सफर हो।